Greetings, students. Now, welcome back to the English class, and today we'll do a poem that is known as Laburnum Top. What it is known as Laburnum Top. Okay, who has written this poem? Ted Hughes. Okay, Ted Hughes. Now, let me just talk about Ted Hughes. Now, you can see the picture. Now, Ted Hughes, children, was born on 17 August 1930 and he died on 28 October 1998. Children, he had two wives and three children, and he's an English poet. Okay, because he writes in English है ना, तो इसीलिए इंग्लिश पोएट. ट्रांसलेटर का मतलब है अलग अलग लैंग्वेजेस को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना. एंड चिल्ड्रंस राइटर हु राइट अबाउट चिल्ड्रन पोम और स्टोरीज, राइट. Critics frequently rank him as one of the best poets of the generation. Now, who are the critics? Critics जैसे जो बताते हैं चीज़ें सही हैं या गलत है. कभी बार हम मूवीज़ देखते हैं, राइट. तो हम जब मूवीज़ देखते हैं तो बताते हैं ना कि क्रिटिक्स ने कितने मार्क्स दिए. हम स्टार्स पूछते हैं ना पहले कि 5 में से 4 आए, तो कौन देता है? वो क्रिटिक्स देते हैं. ठीक है. फ्रीक्वेंटली रैंक हिम एज वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स of the generation and one of the greater 20th century greater writer and one of the greatest 20th century writer, and he's one of the best writer at 20th century. Now if we come, this is not the word. He's one of the 20th century greatest writer, right? And we'll add here greatest. Okay, children, so we will cut this and we'll write here greatest. Correct? Okay. Now, let's see the introduction to Laburnum Top. Now, the poem Laburnum Top is a beautiful poem by Ted Hughes. Okay, who has written it? Ted Hughes. In his poem, the poet has used the laburnum top and golden finches as a symbol of life and its fluctuation. ठीक है. तो गोल्डन फिंच क्या है? एक बर्ड है चिल्ड्रन. तो किसके लिए सिंबलाइज करती? लाइफ के लिए. एंड इट्स फ्लक्चुएशन. He describes visiting of golden finches on the laburnum top and how she has made a nest on it. When the golden finches have chicks, ठीक है, it brings alive the tree as the chicks started to rustle and chirp. तो एक सिंबॉलिक है किसमें? ट्री में और गोल्डन फिंच में. और उन्होंने डिस्क्राइब करा है जब नेस्ट में जब गोल्डन फिंच बर्थ देती है बच्चों को, तो कैसे वो एक लाइवली हो जाता है, कैसे वो एक रिलेशनशिप हो जाता है लेबर्नम टॉप ट्री के साथ, राइट. ह्यूजेस इज ट्राइंग to convey the message that life is a process of exchange and transformation. तो इधर बताओ क्या बताया गया है? ये पोएट्री 3 चीज़ों में डिवाइड करी गई. एक जब ट्री बिल्कुल साइलेंट रहता है, दूसरा जब वो फिर नॉइज़ बनाता है, और तीसरा जब वो फिर से साइलेंट रह जाता है. नाउ पीपल आर अलाइव बिकॉज दे अंडरगो चेंज ऑफ एनर्जी, right? The golden finches transform the tree and make it alive. Without the golden finch and the chicks, the laburnum is just another tree, right? Now, what will be the central idea of it? Now, the poem Laburnum Top is a beautiful poem in which poet has used laburnum tree and golden finch as the life and its fluctuations. Okay, right? Now it is the laburnum tree symbolizes the pattern of our life in general, which is usually done and inanimated. ठीक है. तो हमको इस जो स्टोरी या पोम से क्या बोलते हैं कि हमारी लाइफ क्या है? डल है और इनएनिमेटेड है. द गोल्डन फिंच ब्रेक्स द यूजुअल पैटर्न एंड मेक्स इट लाइवली. ना कोई ऐसा बोलते हैं ना तत्व हमारी लाइफ में आ जाता है जो हमारी अनलाइवली चीज़ें हैं उसको भी बहुत हैप्पीनेस के साथ चीज़ों को बना देता है. विदाउट द गोल्डन फिंच द लेबर्नम ट्री इज़ जस्ट लाइक अनदर ट्री.
ठीक है। और अगर गोल्डन फिंच ना आए तो जैसे हर ट्री के साथ होता है वो भी लेबर्नम ट्री भी सेम होता होगा। इन अदर वर्ड इट्स एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स लाइफ दैट मेक्स इट मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग, राइट। नाउ सी, this is laburnum tea, a short tree with hanging branch, yellow flowers and poisonous seed, right? What is a laburnum tree? A laburnum tree is a short tree with hanging branches, yellow flowers, and poisonous seeds. Okay, now let's move on to the explanation. The laburnum top. अब laburnum top का मतलब जैसे पेड़ के ऊंचाई पर होता है ना चिल्ड्रन, जैसे माना कि ये पेड़ है लेबर्नम टॉप का, क्योंकि इसके हैंगिंग ब्रांचेस होते हैं, राइट। इट इज़ नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो जो लेबर्नम टॉप है इट इज़ लाइक दिस फॉलिंग डाउन। तो टॉप मतलब ऑन दी टॉप ऑफ द ब्रांच। लेबर्नम देखो, लेबर्नम यहाँ पर क्या हुआ, अमलतास, राइट। तो क्या है इधर, लेबर्नम नेम ऑफ द ट्री दैट इज अमलतास, राइट। नाउ लेट अस गो विद द स्ट्रैंजा। द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट। उसने बोला है जो लेबर्नम टॉप है, जो ट्री है, बहुत चुपचाप है, क्वाइट, चुप, एंड स्टिल, ठीक है। साइलेंट, क्वाइट एंड स्टिल। In the afternoon, yellow September sunlight. Now it is autumn season, the leaves are actually falling, right? They shed their leaves, right? A few leaves yellowing. एक तो बेटा जो उनके फ्लावर है वो भी येलो कलर का होता है, और जब वो गिरते भी हैं तो थोड़ा येलोइश कलर का हो जाता है ना। तो all its seed fallen, राइट। तो लेबर्नम का मीनिंग हमने पता कर दिया क्या है, अमलतास जो एक पेड़ का नाम है, और सितंबर सनलाइट इज इन ऑटम सीजन, ठीक है। सो इन द आफ्टरनून, राइट, इट इज नोन इन द आफ्टरनून येलो, ठीक है। सितंबर सनलाइट, येलो मतलब सन को बोला गया है। द पोएट डिस्क्राइब्स अ ब्यूटिफुल सनी आफ्टरनून, ऑटम, ठीक है, सनी ऑटम के बारे में बताया गया है। द लेबर्नम ट्री इज साइलेंट एंड स्टिल। तो लेबर्नम ट्री यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा साइलेंट एंड स्टिल है। इट इज़ लेडन विद येलो लीव्स एंड येलो फ्लावर्स इन सितंबर। तो उनके जो फ्लावर्स हैं वो भी येलो हैं, जो लीव्स हैं वो भी येलो हैं। इट्स लीव्स हैव टर्न्ड येलो बिकॉज ऑफ द ऑटम सीजन एंड ऑल इट्स सीड हैज़ फॉलन, ठीक है। और उसकी सारी की सारी जो सीड्स हैं वो हैं फॉलन है। नाउ नेक्स्ट, टिल द गोल्डन फिंच कम्स। अब कौन सी बर्ड आती, गोल्डन फिंच, ठीक है। एक बर्ड का नाम क्या है, गोल्डन फिंच। ट्विटरिंग, चरप। नाउ ट्विटरिंग मीन्स सडन जर्क और मूवमेंट, एकदम से, ठीक है, सडन जो होता है। चरप, अ बर्ड मेक्स रिपीटेड हाई पिचड साउंड, ची 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 करने वाली साउंड। अ सडननेस, एकदम, सडननेस एकदम से। स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, स्टार्टलमेंट फीलिंग और शोइंग सडन शॉक, ठीक है। आई एम स्टार्टल्ड, ठीक है। एट द ब्रांच एंड, तो वो आती हैं, कौन आता है, देखो ये वाली बर्ड है, राइट। इट इज़ अ गोल्डन फिंच। कौन सी बर्ड है ये, गोल्डन फिंच है, राइट। तो एकदम से क्या आती है, गोल्डन आती है, और जोर जोर की से आवाज़ करके एक ब्रांच के एंड में बैठ जाती। देन स्लीक एज अ लिजर्ड, स्लीक, what do you call it, स्लीक, वेरी स्मूथ, है ना। लिजर्ड की जो स्किन है ना बहुत स्मूथ होती, शाइनी होती। एंड अलर्ट, अलर्ट एकदम से, अगर हम देखें तो लिजर्ड जैसे कहीं दीवार पर रहते हैं, हम थोड़ा सा भी पास जाके या आवाज़ करते तो वो मूव कर देता है, तो अलर्ट है वो। एंड अब्रप्ट, अब्रप्ट मीन्स रैपिड, सडनली, बहुत जल्दी में, अगर हम उनको छेड़ने भी जाएं तो बहुत जल्दी में। शी एंटर्स द थिकनेस, थिकनेस मतलब अब वो पेड़ के अंदर आ जाती। एंड द मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन इज हियर, मशीन इज कंपेयर्ड, सॉरी नॉट कंपेयर्ड टू अ मशीन, मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन को यहाँ पर नेस्ट की बोला गया है। क्या बोला गया चिल्ड्रन, यहाँ पर नेस्ट बोला गया है, ओके, नॉट मशीन, इट इज कंपेयर्ड टू नेस्ट, ओके, ठीक है। ये तीनों आगे समझ में। तो टिल दी गोल्डन फिंच, गोल्डन फिंच ऐसे दिखती है, देखो, इट्स अ बर्ड,
अगेन इन येलो कलर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से कलर को सिंबलाइज किया है इस पोएट्री में, तो येलो कलर को, ठीक है। एंड ट्विचिंग, सडन जर्क और मूविंग। चिरिप, अ बर्ड मेक्स रिपीटेड हाई पिच साउंड। स्टार्टलमेंट, फीलिंग ऑफ शोइंग सडन शॉक। अब्रप्ट, वो कैसे किससे कंपेयर किया गया है, लिजर्ड से कंपेयर किया, जो शाइनी है, बहुत क्या है, अलर्ट है, ठीक है। रैपिड, मशीन स्टार्ट्स अप कंपेयर टू अ नेस्ट। जैसे मशीन जब स्टार्ट होती है क्या करती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। तो सिमिलरली जैसी वो गोल्डन फ्लिंच आती है, वो क्या करती है, वो नेस्ट को कंपेयर किया गया। अब वो क्या बोलने चाह रहे, माना ये पेड़ है, पहले तो गोल्डन फ्लिंच आई तो यहाँ पर बैठ गई ऊपर में। अब क्या हुआ, वो क्या करी, अंदर गई, थिकनेस बोला है ना, एंटर द थिकनेस। जैसी वो अंदर जाती है, मशीन स्टार्ट्स अप, नेस्ट में चिचहाट की आवाज़ आ जाती है। दैट मीन्स वो उसके बच्चों की आवाज़ आ जाती है। नाउ दिस इज अ गोल्डन फ्लिंच। नाउ नेक्स्ट ऑफ चिटरिंग। अब साउंड किसकी आती, चिटरिंग, टू मेक अ चैटरिंग साउंड, चीची चीची आउट। ट्रेमोर ऑफ विंग्स, इनवॉलेंट्री वाइब्रेशन ऑफ विंग्स, अब उसके विंग्स फटाफट हिलने जाते। एंड ट्रिलिंग्स, टू प्रोड्यूस अ चर्पिंग साउंड, राइट। तो चिटरिंग साउंड मेड बाय बेबी, ट्रेमोर शेकिंग, ठीक है, जल्दी जल्दी में। ट्रिलिंग, सिंगिंग अ सीरीज ऑफ क्विकली रिपीटेड हाई नोट्स, राइट। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, अब वो क्या बोल रहा है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स टू शेक, ठीक है। एंड थ्रिल्स, a sudden feeling of excitement. It's like the engine of her family. इंजन किसको बोला गया है, बर्ड को बोला गया है, ठीक है। गोल्डन फ्लिंच को बोला गया, मशीन किसको बोला गया है, नेस्ट को बोला गया है, राइट। सी द कंपैरिजन इज मेड आउट हियर। ओके चिल्ड्रन, नाउ ये क्या बोल रहे हैं, ऑफ चिटरिंग, ठीक है। दे आर कॉलिंग ऑफ चिटरिंग एंड ट्रिमर ऑफ द विंग्स एंड ट्रिलिंग, right now. It they just then a golden flinch lightens on the laburnum tree, making, यहाँ से कर लेते, making short high pitch sound। जैसी वो आती है तो वो चिटरिंग का साउंड करती है। The golden finch has her nest in the tree and her chicks are resting in the nest। तो कौन रेस्ट कर रहा है, उनकी जो गोल्डन फ्लिंच है उसके बच्चे। ऑन द मदर्स रिटर्न अ सडन मूवमेंट स्टर्स द ट्री, ठीक है, जैसी आती है तो कुछ ना कुछ आवाज़ें आने लगती है। हर लिटिल वंस आर एक्साइटेड ऑन हर अराइवल एंड स्टार्ट चर्पिंग, जैसी वो वापस आती है जैसे, तभी कितनी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आनी लगती, तभी तो मशीन स्टार्ट्स अप बोल दिया गया है, राइट। The cautious mother enters the tree with great care so that no predator can come to know that her babies are housed in the nest। पहले वो ऊपर क्यों बैठती है, ताकि किसी को पता ना लगे, देखती है उधर उधर कि प्रीडेटर कौन होते, प्रे होते जो जैसे कि प्रे हो गए, बर्ड हो गई, प्रीडेटर जो बर्ड को मार देगी, राइट। तो किसी को पता ना चले कौन आया है, बर्ड आई है अपने बच्चों के पास। द पोएट हैज कंपेयर्ड द अलर्ट, abrupt and sleek movement of golden finch with that of lizard. The golden finch has been called the engine of her family। तो इंजन, क्योंकि जैसी वो आता है जैसी वो आती है तो आवाज़ें बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, शी स्ट्रोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट ऑफ अ ब्रांच एंड। शी स्ट्रोक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, शी स्ट्रोक्स, sorry children, it's stokes, it is not strokes out here, it is stokes, sorry, okay। Now it stokes it full means to add fuel to the engine, ठीक है, stokes mean adding fuel, ठीक है। here golden finch is feeding her chicks, so you are adding the fuel। then flirts out of the to the branch end, then she lead on to the branch end and showing her barred face, identity mask, barred is trippy,
ठीक है। जैसे ना गोल्डन फ्रिंज के जो फेस है, माना कि बर्ड का जो ये वाला पोर्शन है वो स्ट्राइप्स में, नहीं तो पूरा का पूरा येलो कलर की है तो पता नहीं चलता, बस उसके फेस का क्या है, स्ट्राइप है हल्के से, राइट। Just as the engine starts up the machine, her arrival in the nest has suddenly started up the silent machine nest. The young ones have started chittering and making noises. By feeding her young ones, she had added fuel to her machine, and as a result, the chicks now have the energy to be active and make noise. After feeding her chicks, the golden finch flies up and rests on the end of the branch of the tree, her identity concealed behind the yellow flowers and yellow leaves. क्योंकि देखो हमने यहाँ पर देखा था चिल्ड्रन, तो क्या है, बर्ड भी येलो है, राइट, और यहाँ पर देखा हमने तो ट्री भी येलो कलर का है। तो अगर ऐसा है तो क्या है, वो पता नहीं चलेगा, राइट। तो क्या है, सिर्फ वो स्ट्रिप जो है उससे पता चलता है, राइट। नाउ सी, शी इज सिटिंग एंड पर्चिंग इन दी नेस्ट, कहाँ पर बैठी है, वो नेस्ट में बैठी है। नेक्स्ट, देन विद ईरी डेलिकेट whistle chirp whispering. Now what are we calling, then with eerie, ठीक है। eerie means डेलिकेट, eerie मतलब स्ट्रेंज साउंड या वियर्ड साउंड। डेलिकेट whistle chirp whispering, chirp whispering, here we are talking about gentle whispering like chirping। पहले तो बहुत तेज आवाज थी, chirping चीची चीची थी, अब क्या है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा थी, अब शी लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज जैसे रॉकेट को लॉन्च किया जाता है ना, वैसे ही वो वहाँ से चली जाती है। टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन्स स्काई, क्योंकि स्काई इनफाइनाइट है, फाइनाइट तो है नहीं, हम उसका एंड नहीं देख सकते स्काई का, तो इसीलिए उसको इनफाइनाइट कंपेयर किया गया है। एंड द laburnum subsides to empty, अब वो बोलने जो laburnum है, subside means diminishes to empty, become silent again। तो देखो यहाँ पर क्या क्या गया है, पहले क्या था, जो ट्री था वो एम्प्टी था, साइलेंट था, है ना। देखो यहाँ पर हमें क्या, सॉरी चिल्ड्रन, देखो अगर हम पीछे जाएं, राइट, तो क्या है, यहाँ पर देखो फर्स्ट पैराग्राफ में लेबेनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट एंड स्टिल, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर मशीन स्टार्ट्स अप, ठीक है। जो सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है, मशीन स्टार्ट्स अप, ठीक है। तो पहले में क्या था, साइलेंट था, अब क्या है, आवाज़ आनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब फिर से ट्रेम्बल है, ये पूरा बीच का जो पैराग्राफ है वो क्या बता रहा है, दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द ट्री, राइट। एंड she stokes up, now here strokes won't be there, it will be stokes, ठीक है। The spelling will be this, stokes, right, stokes, stokes means to add a fuel, right। next, अब वो क्या करती हैं, she launches away, वहाँ पर to the infinite, infinite would be we will be talking about, infinite will be the sky, infinite क्योंकि उसमें कोई end नहीं है। and the laburnum subsides to empty, subside diminishes to empty। now after some time the golden finch make a strange short high pitched sound, then she flies away towards the infinite sky। the laburnum tree becomes silent again after the departure of the golden finch, and everything seems to be same as it was before her अराइवल। तो आपको समझ में आ गया कि पहले क्या था, बहुत ज़्यादा आवाज़ें थी, राइट, और अब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा चुप होना शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि लेबर्न वो जो बर्ड है वो क्या होने शुरू हो गई, वो अब शी डज नॉट वांट टू टॉक अ लॉट, ठीक है। अब वो साइलेंट हो गया, शी डजंट वांट टू डू टॉक और शी डजंट वांट टू चर्प, ठीक है, बिकॉज शी हैज़ फेड, वो क्या आई थी, अपने बच्चों को खाना देने आई थी, राइट। सो दैट इज़ वाई। अब क्योंकि एरी क्या होते हैं, वैसे एरी इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड विच इज़ वेरी, यू नो,
वियर्ड साउंड, भूतिया साउंड, ठीक है। भूतिया क्योंकि अब चर्पिंग बहुत ज़्यादा विस्परिंग में हो चुकी हैं, राइट। फुसफुसाहट जिसे बोलेंगे। नाउ हियर सी इट अगेन, सिंबल ऑफ लाइफ एंड इट्स फ्लक्चुएशन कर रहे हैं। In this poem, the poet describes how the visit of the golden flint changes the laburnum tree. ठीक है, तो चेंज हुआ है जब हमने पूरा पढ़ा है। The golden finch transforms the tree and makes it more alive as the chicks of the golden finch start to rustle and chirp on seeing her. जैसी वो आती है वो आवाज़ आ जाती है। Once the golden finch leaves the tree, it becomes quiet and still again. अब जैसी छोड़ गई तो क्या है, quiet and still again हो गया। The laburnum tree symbolizes the pattern of our life in general, है ना, and is usually done and inanimated. जब तक हमारे लाइफ में कोई नहीं आए तब बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, डल हो जाती है, inanimate हो जाती है। The golden finch breaks the usual pattern. It breaks the usual pattern and makes it lively. Without golden finch, the laburnum tree is just like another tree. ठीक है, it is just like another tree. In other words, it is attitude of a person towards life that makes life meaningful and worth living. Thank you, children. Now, in the next video, we will do figure of speech or literary devices in the poem. Okay. Now, thank you very much.